Hello everyone, this is Meenakshi. I hope you are safe and enjoying my videos. Today we will start our new topic, that is linear equation in one variable. Before starting our topic, let's start understanding some basic concept. First is variable and constant. What is the difference between a variable and a constant? जैसा कि आपको वेरिएबल के नाम से पता चल रहा है, वेरिएबल दैट मीन्स वेरी करना। आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जहां पर हमें वैल्यू x गिवन होती है 1, किसी क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू गिवन है 3, मेनी टाइम्स x वी हैव 4। आप यहां पर x आपका 1 है, 3 है एंड 4 है। दैट मीन्स x आपका हर क्वेश्चन में वेरी कर रहा है। इट मीन्स कि किसी भी क्वेश्चंस में आपको x की वैल्यू कोई भी दी जा सकती है, वो डिपेंड करती है आपके क्वेश्चंस पे। इस टाइप से आपको y की वैल्यू दी जा सकती है, z, एनी अल्फाबेट्स, कोई भी अल्फाबेट आपके पास हो सकता है जहां पर आपको वैल्यूज डिफरेंट दे सकती है। सपोज कीजिए आपको s की वैल्यू 1 दे दी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको s की वैल्यू 7 गिवन है। दैट मींस all the alphabets in the mathematics language we said these are the variable. Second is constant. What is the constant? यहां पर आपके पास 1, 3 and 4. These are the constant. अगर आपके क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 1 है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर 1 है तो वह 1 ही रहता है। ये नहीं कि आप किसी क्वेश्चन में 1 को 1 के नाम से जानते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 का 2 हो जाता है। नो, 2 है तो वो हर क्वेश्चन में 2 ही होता है। मीन्स वो कांस्टेंट है, वो स्थिर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। These are the majorly difference between a variable and a constant. Variable जो वेरी करते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, constant जो स्थिर होते हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। Second is algebraic expression. What is the algebraic expression? The combination of the variable and the constant and the binary operation. हमने पहले binary operation के बारे में पढ़ लिया है। What is the binary operation? Plus, minus, multiplication and division. These are the binary operation in mathematics language. The combination of a variable and the constant and the binary operation is a algebraic expression. For example, 3x plus 2y plus 3. In the same way, we can write 9x plus 5. These are the algebraic expression. First algebraic expression have 3 terms, 3x, 2y and 3. In the second algebraic expression, we have 2 terms, 9x and 5. These are the algebraic expression. Third one is equation. When we equate the algebraic expression equal to 0, जब आप algebraic expression को equals के साथ equate कर देते हो 0 means equal to 2, तो ये आपका algebraic expression equation में convert हो जाता है। means equal का साइन आप algebraic expression में यूज नहीं करते, लेकिन अगर हम algebraic expression में ही equal का साइन यूज करते हैं तो वो equation बन जाती है। तो यहाँ पर आपके algebraic expression चेंज हो गए हैं इनटू इक्वेशन। चेंज इनटू इक्वेशन मींस दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन algebraic expression and the equation. Algebraic expression is a combination of the binary operation and the variable and the constant, and when we put the equal sign in the algebraic expression, then it's changed into a equation. Now we discuss linear equation. What is a linear equation? Linear equation, that means 9x plus 5 is equal to 2, as we discussed already. What is a linear equation? Linear equation means जहां पर आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि आप x की पावर है जो वो आपके पास 1 है। x की पावर आपके पास 1 है, जहां पर वो वेरिएबल की पावर आपको कोई भी शो नहीं है, दैट मींस वो पावर आपकी 1 है।
सपोज कीजिए हमने लिखा है यहाँ पर 9x² + 5 = 2, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है यहाँ पर कि आपके पास x गिवन है। अगर हम इस इक्वेशन को लेते हैं दैट इज 3x + 2y + 3 = 0, दिस इज ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन बिकॉज यहाँ पर x की पावर और y की पावर दोनों की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर आप इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहोगे बिकॉज आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं x and y. That means this is a linear equation in 2 variable. Now we discuss method for solving linear equation. Take a linear equation 2x + 3 = 0. We discuss 2 method. सबसे पहले हम करते हैं सॉल्व 2x + 3। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो भी आपके पास इसमें एक्स्ट्रा है +3 and 2, आपको इसको खत्म करना है। वो कैसे? फर्स्ट ऐड -3 ऑन बोथ साइड। आप दोनों साइड ऐड करोगे -3, 2x + 3 -3 आपने इस साइड भी ऐड किया और इन द सेम वे आपने दूसरी साइड भी -3 को ऐड किया। -3 and +3 हम पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव ऑफ ए नंबर को जब आप किसी नंबर के साथ ऐड करते हो तो वो 0 हो जाता है। 2x यहाँ पे आपका +3 and -3 कैंसिल, देन 0, और 0 में आप अगर कुछ भी ऐड करते हो वी गेट -3। 2x जब भी आप 2x में 0 ऐड करोगे दैट मींस वी गेट द सेम नंबर 2x = -3। नाउ 2x आपको 2 रिमूव करना है। कैसे? बिकॉज 2 आपके पास इसमें मल्टीप्लिकेशन में है तो आप डिवाइड करोगे। डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। आपने दोनों साइड को 2 से डिवाइड किया। 2 से 2 कैंसिल बिकॉज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है, and we get x - 3/2. This is the first method to solve the linear equation. Now we discuss second method 2x + 3. This is the transfer method. आप इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट देखते हैं। आप ऑलरेडी पहले जानते हैं लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं इस चीज को। जब इक्वल का साइन आप यूज करते हो, जो चीज यहाँ प्लस में होती है वो इक्वल की दूसरी साइड माइनस में जाता है, एंड जब हम इक्वल का साइन यूज करते हैं जो यहाँ चीज प्लस में है तो वो दूसरी साइड माइनस में जाता है। यहाँ पर अगर माइनस में है कोई नंबर देन वो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस में जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में है कोई नंबर तो अपोजिट डायरेक्शन में डिवीजन में जाएगा, एंड वी हैव अगर डिवीजन में है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। मींस जब भी आप किसी नंबर को इक्वल के दूसरी डायरेक्शन में लेके जाते हो तो उसने साइन का अपोजिट हो जाता है। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में। यही मेथड आप इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करोगे। 2x + 3 = 0। सबसे पहले आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर सबसे पहले एक्स्ट्रा है 3 + 3। आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओगे तो ये -3 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे आपके पास 2 एक्स्ट्रा है, दैट इज जो मल्टीप्लिकेशन में है, जहां पर दो नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं होता, दैट मीन्स वो आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। 2x = -3, यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो जब आप इस -2 को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा, दैट मीन्स -3/2। दोनों ही मेथड से आपको आंसर सेम मिलेगा, चाहे आप फर्स्ट मेथड से सॉल्व कीजिए चाहे आप सेकंड मेथड से सॉल्व कीजिए। दिस इज द मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। Now we discuss where we can use this linear equation in one variable in our daily life. आप कहां पर अपने रियल लाइफ में मैथमेटिक्स का यूज कर सकते हो।
हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए आपकी मदर ने आपको टेबल और चेयर खरीदने के लिए मार्केट में भेजा। आप टेबल और चेयर शॉप से लेके आए। आपको याद है कि आपने उस शॉपकीपर को 1600 रुपीज गिवन किए, मीन्स टोटल रुपीज जो आपने उस शॉपकीपर को दिए हैं वो आपके पास 1600 है। घर आने के बाद आपकी मदर ने आपसे टेबल और चेयर का सेपरेटली प्राइस पूछा है। आपको याद है कि टेबल आपने 900 की ली है, मीन्स जो प्राइस है टेबल का वो आपके पास 900 है, बट आप चेयर का प्राइस भूल चुके हो। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रियल लाइफ में आप मैथमेटिक्स का यूज करोगे। लेट प्राइस ऑफ चेयर x, क्योंकि आप भूल चुके हो कि चेयर का प्राइस क्या था, तो आपने ये मेथड यूज किया। लेकिन आपको पता है कि आपने शॉपकीपर को टोटल रुपीज 1600 दिए हैं। आपको टेबल का प्राइस भी याद है, लेकिन आपने चेयर का प्राइस फाइंड आउट करना है। तो हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि टेबल और चेयर दोनों का प्राइस मिलाने के बाद आपने शॉपकीपर को 1600 रुपीज दिए हैं। सेम मेथड आप यूज करोगे। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये चीज प्लस में है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, माइनस में हो जाएगी। 1600 माइनस 900 वी गेट 700। दैट मीन्स ये प्राइस किसका है? आपका प्राइस ऑफ चेयर। इन द सेम वे वी कैन यूज दिस मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ। Now I will give some exercise for your practice. First, define linear equation in one variable, and second is solve this linear equation. 3x plus 7 is equal to 50. Do this exercise and put your answers in comment box. Please like this video and share, subscribe. Thank you.